आई वॉज एक्चुअली क्यूरियस, तुम लोगों ने ये टेक कंटेंट क्रिएट करना शुरू क्यों किया था, लाइक कैसे किया था, लाइक व्हाट्स दैट बैक स्टोरी, क्या थी वो वजह जिस वजह से सौम्या और ऋषिका ने शुरू किया टेक कंटेंट क्रिएशन? In basically in 2022, like I had I had some plans that okay, I should try something out of my comfort zone. Mainly, I would say till my engineering, and even after getting the full-time placement and everything, I was mostly doing my job, and I was exploring a lot in the freelancing domain, right? So I was not doing something kind of video creation or putting things publicly. But I do had experience of creating a complete course on mobile app development with one of the edtechs. So वो चीज़ था. Apart from that, I thought कि I should try, making some contents in form of videos. That was something I thought would be very challenging for me. But I thought, okay, let's take this challenge. That's why in 2022, I would say by the end of Jan, or you can say by the beginning of Feb, I started the idea of having a YouTube channel, and that's how I created it. And because my expertise, my interests are around these domains, around tech, so I thought, okay, let's keep the channel focused on this thing only, because I cannot talk about those things in which I don't have expertise, right? So yeah, that's why, and that's how I created the channel. And yeah, many more things are yet to come. I mean, it's just the beginning. It has been just 2 to 3 months. So I'm still exploring, and I think it's fine. I am not finding it even too difficult. In the beginning, I was a bit, scared that, okay, how will I speak in front of the camera? How will I look in front of the camera? But with time, I think I'm getting comfortable with it. And at least I will not regret that, okay, I didn't try this thing. So, yes, enjoying it, exploring it. Okay, and Rishika, what about you? Yeah, so यार मेरा तो I love teaching. So I started like मुझे प्रॉपर बुक से पढ़ाना एंड ऐसा हो कि लाइव टीचिंग में पढ़ा रही हूँ, सामने मेरे पास बंच ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हों और मैं लिटरली Q&A कर रही हूँ एंड डिस्कशन कर रही हूँ. आई रियली लाइक दैट एंड आई एम डूइंग दिस सिंस माई चाइल्डहुड. ऑल्सो उस टाइम पे एज अ टीचर नहीं, बट फ्रेंड्स को सिखाते थे. देन उसके बाद फिर फिर 11th-12th में आई यूज्ड टू टीच ऑन ब्लैक बोर्ड. जब भी हमें फ्री टाइम होता था तो माई फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि यार ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का तू ही समझा दे, ये चैप्टर मैथ्स का तू ही समझा दे. I used to go to the blackboard and teach everything. So yeah, I like teaching, and even I worked as an educator with an academy. Then worked with One Step Forward Foundation to teach young students about coding and all these things. So वो चीज़ तो थी ही, but lockdown की वजह से of course offline ये सारी चीज़ें बंद हो गई. And somehow I was really missing कि यार मुझे पढ़ाना है, यार कुछ तो करना है. So you can say kind of experiment था मेरे लिए, and not to test कि मैं कैमरा पर कैसे वर्क करूँगी या कैसे बोलूँगी. It was more of कि यार मैं घर पे बैठे बैठे टीचिंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, तो मैंने फिर यूट्यूब स्टार्ट कर दिया. तुम दोनों टेक कंटेंट क्रिएशन में हो ना, लाइक जिसके अंदर तुम लोग टेक्नोलॉजी और आई वुड से कोडिंग के अराउंड मेजरली कंटेंट क्रिएट करते हो, राइट? और इज इट मोर अराउंड समवेयर एल्स? So there is a difference. I create educational content related to coding and stuff, like proper implementation of coding, and Soumya is more aligned with creating interviews and podcasts and opportunities, very type of opportunities like jobs and GSOC and technical writing, etc. So that she can discuss more important, but we are in different domain even if we are creating content on tech. ओके, नाउ दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग. तो ऋषिका वो चीज़ें सिखाती है बच्चों को और स्टूडेंट्स को जो लोग सीधा देख के इम्प्लीमेंट करते कि देखा चलो कॉपी मारते डन हो गया. लेकिन जो सौम्या है, सौम्या तू क्या करती है एग्जैक्टली? Okay, so like generic, I would say कि I create generic tech content. Maybe something like interview experiences of different companies, or maybe sometime like what I have done, the domains in which I have some expertise, like mobile app development, or I don't actually get time to do to show demo of things like okay. I have seen Rishika's video. Her videos are very much focused to particular thing like how to implement linked list or questions around linked list, such a stuff, right? So my content is a bit generic in tech. If you want to get into tech or maybe product management, dev advocacy,
So I have a kind of generic content which covers a wider audience. So like for Ishika, her audience is focused that people who are maybe willing to get into, maybe they want to learn data structure algorithm or some particular topics. So her audience are more of that kind, right? So yeah, that's the difference mainly. Yeah. And also, Tushar, like the tech domain is very vast. So there are multiple positions in it. So like I am a software developer, Soumya is a software developer, but there are UI UX designers, then product designer, then a lot of profiles are there. So Soumya basically create content to break down those profiles to show that how someone can reach out to that profile and what is the usual day-to-day life looks like for that particular profile. So, and my work is to teach students how they can get into that profile, how they can pass the test that comes for that profile, and how they can crack interviews. So on that stuff. ओके, सो लेट मी नो मैं सही समझाऊँ कि नहीं. सौम्या जो है वो रास्ता दिखाती है, कार इसके ऊपर चलाओ पहुंच जाओगे तुम लोगों को जा रहा है. ऋषिका इज लाइक इस रास्ते पे कार कैसे चलानी है मैं वो सिखाती हूँ ना तुम लोगों को. लाइक दैट्स व्हाट यू गाइस डू, राइट? अरे टीचिंग यार, मैं मजाक नहीं कर रहा. जो टीचर्स है ना स्पेसिफिकली यूट्यूब पे जो छाए है लॉकडाउन में, मतलब क्या ही बोलो है, मेरे पास शब्द नहीं है टीचर्स के लिए. एंड यू नो लाइक जो तूने बचपन वाली बात की ना, दोस्त बोलते थे पढ़ा दे यार, पढ़ा देना यार, पढ़ा ही लेना, तू अच्छा पढ़ाती है. आई रिमेंबर दिस वन सीन, like any specific story from your school time about teaching? देखो मैं मजाक नहीं कर रहा. टीचिंग इज वन ऑफ दोज थिंग्स कि जिन बच्चों ने भी पढ़ाया है ना, उनकी ऐसी अतरंगी कहानियां हैं कि मैं बता नहीं सकता. लाइक मेरे को पता है. तो वन ऑफ दोज अतरंगी स्टोरीज फ्रॉम योर बैकग्राउंड और योर पास्ट. ओके, सो मतलब मुझे स्टोरीज ऐसे याद नहीं रहती है, पास्ट स्टोरी, सो मुझे रिकॉल करने में टाइम लगेगा. मे बी टिल देन ऋषिका इफ शी हैज एनी सच इंटरेस्टिंग स्टोरी. ऋषिका की शक्ल पे लिखा है उसके बाद 3 स्टोरीज मिनिमम रेडी पड़ी है. मुझे मौका दे तो मैं बताऊंगा. आई हैव वन जो भी ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड है, अदरवाइज मुझे भी रिकॉल करना पड़ेगा. सो ऑल्सो ये स्टोरी भी नहीं है, वो एक छोटा सा मोमेंट था. तो क्या हुआ, फिजिक्स आई थिंक 10th क्लास की बात है एंड आई वाज टीचिंग फिजिक्स. तो नॉर्मली एज ए फिजिक्स सबको टफ लगती है कि यार ये क्या है, ये समझ ही नहीं आ रहा है ये, ठीक है. मतलब केमिस्ट्री इज़ मोर ऑफ लर्निंग थिंग एंड मैथ्स में थोड़े लॉजिक्स वगैरह होते हैं तो चल जाते हैं. केमिस्ट्री के लॉस तुम्हें पहले समझने पड़ेंगे क्वेश्चंस करने के लिए. तो आई वाज टीचिंग वन ऑफ माई फ्रेंड्स और मुझे ऐसे करके देख रहा था वो बस. मैं उसे पढ़ाई जा रही देख रहा, समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा तो बोलती जा. अच्छा ओ भाई साहब, ओह माय गॉड. वो तो ना यार सुनने में अच्छा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, बोलती जा. तो भाई जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला ना बोलती जा, भाई ये कॉन्फिडेंस हमें चाहिए जिंदगी में. मतलब आई मीन जस्ट भाई तुम एक इंटरव्यू में गए, ठीक है, एक पोजीशन है SD इंटर्न की, तुम इंटरव्यू में गए, इंटरव्यूअर सवाल पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है, मे बी फीडबैक दे रहा है, एंड देन आज समझ आया, यार समझ ही नहीं है बट बोलते रहो, अच्छा लग रहा है. जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन. अरे सोया तो तुषार, yeah, like you are asking so many questions from both of us. तो मतलब तुम्हारी कभी कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी स्टार्ट हुई एंड how you got into this? मैंने बताया ना मैं 11.5-12 साल का था, तब पहला कंटेंट क्रिएट किया था इससे, जो वो तो हो गया, भाई, मतलब जो अपलोड नहीं हुआ. बड़े वाले पे कब किया? अरे नहीं, so I would say ना, like I have been into content creation for almost 7 to 8 years with time intervals and gaps. That's something which I would say. Like if you guys remember, एक ज़माना था जब Musical.ly नाम का कुछ exist करता था, TikTok का पुराना नाम, तुम लोग अगर पता हो तो. When TikTok was known as Musical.ly, I took this challenge of uploading 1000+ 30-second short form videos in less than 100 days. और वो मैंने ख़त्म भी किया था. उसके बाद मैंने अकाउंट ही डिलीट मार दिया अपना. उसके अलावा आई क्रिएटेड अ यूट्यूब चैनल एंड ग्रू इट टू लाइक 15 to 20 के सब्सक्राइबर्स विद अ गुड अमाउंट ऑफ करंट व्यूअरशिप एंड ऑल. बट उसके बाद मैंने उसको भी डिलीट कर लिया था बिकॉज एक दिन मेरा मूड ख़राब था. मेरे आई थिंक तो पापा नहीं तो किसी ने कुछ मुझे बोल दिया था, मेरा मूड और ख़राब हुआ एंड वो बोला था अराउंड यूट्यूब ओनली. तो मेरा गुस्सा है, मैंने कहा भाड़ मेरा यूट्यूब मुझे करना ही नहीं है, डिलीट चैनल. कंफर्मेशन मांगा 2 बार, मैंने कहा डिलीट कंफर्म यस. आई हैव वन क्वेश्चन. पूछिए. बेसिकली फिर रिश्तेदार क्या कर रहे थे?
म्यूजिकली पे रिश्ते में नहीं। अरे नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर क्रिएटिंग 10 to 12 इवन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एवरी सिंगल डे विथ अ ट्राइपॉड स्टैंड, विथ अ DSLR, विथ नए नए कपड़े एंड ऑल, तो पेरेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो एक दिन रिलेटिव्स है मेहमान, तो पेरेंट्स ने बताया हमारा बेटा ये कर रहा है, बिकॉज व्हाई नॉट। तो वो थी। अदरवाइज मैं कंफ्यूज हो गई यार, ये बड़े एडवांस म्यूजिक वहाँ से कंप्लेन कर रहे हैं। क्या ही बोल सकते हैं। And like whenever we talk about tech and tech creation, I saw a lot of creators keeping restrictions to themselves कि वो एक particular kind of content creator है, they would only and only do that. They won't like diverge even like 1 centimeter or 1 millimeter. Do you guys also keep these kind of restrictions on yourself when you're creating these tech videos? ठीक है, तो तुषार आई फील कि टेक साइड में ना, अगर इफ़ यू आर टीचिंग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एंड प्योर, इफ़ योर चैनल इज़ प्योर एजुकेशनल, तो हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। बिकॉज लेट्स से अगर मेरा चैनल जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं जावा पढ़ाने लग जाऊँ, तो स्टूडेंट्स विल बी लाइक यार ये चैनल मैंने सब्सक्राइब किया था फॉर जावास्क्रिप्ट एंड नाउ माई एजुकेटर इज़ टीचिंग मी जावा एंड बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट। बट अगर आपका चैनल थोड़ा जनरिक है, एज इन माई केस आई टीच डेटा स्ट्रक्चर्स मोस्टली एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड AWS, सो AWS इज़ अ वेरी फास्ट टॉपिक अगेन, उसके अंदर सारी चीज़ वी आर कवरिंग, सो दैट इज़ मोर ऑफ जनरिक थिंग एंड उसमें हम काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ चैनल, बट इफ़ यू हैव स्टार्टेड यू नो फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर टेक स्टैक फ्रॉम दी स्टार्ट, तो उसके बाद फिर स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ ऑडियंस यू हैव बिल्ड इज फॉर दैट पर्टिकुलर टेक स्टैक ओनली, सो उसमें फिर थोड़ी मुश्किल आती है। बट आई थिंक एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं, अपनी चैनल है तो। Okay, Soumya, what are your views? Yeah, so I somewhere agree to what Rishika said. मतलब अगर किसी ने आपके चैनल के लिए पर्टिकुलर लेट्स से कि XYZ चीज़ के लिए सब्सक्राइब किया एंड समवेयर यू स्टार्ट गिविंग दूसरा कंटेंट, तो थोड़ा इट कुड वर्क लाइक जैसा तुमने एग्जांपल दिया, अच्छा भी वर्क कर सकता है। मे बी कि ऑडियंस को लगे कि यार मैंने तो इस चैनल को इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब किया था एंड शी इज़ मेकिंग एकदम डिफरेंट कंटेंट, सो काइंड ऑफ थोड़ा ऑडियंस में डाउट भी क्रिएट हो सकता है। सो आई वुड से कि इट डिपेंड्स ऑन दी ऑडियंस कि वो कैसा परसीव कर रहे हैं उस कंटेंट को, जो चेंज हमने किया अपने कंटेंट में वो उसे कैसा परसीव कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट मे बी। बाकी आई हैव सीन पीपल कि जैसे एक निक वाइट इज़ देयर, वो भी एक यूट्यूबर है, मोस्टली वो पहले लीड कोड वगैरह क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर देते थे, सडनली उन्होंने व्लॉग्स वगैरह बनाने स्टार्ट किया, राइट। एंड मतलब एज अ ऑडियंस ऑफ एज अ सब्सक्राइबर ऑफ हिज चैनल मुझे उतना बुरा नहीं लगा, बिकॉज मतलब आई यूज टू टेक हेल्प ऑफ हिज वीडियोज फॉर लर्निंग स्टफ, बट अगेन जब वो व्लॉग बनाए थे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ही लग रहा था, सो इट्स फाइन। मतलब ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दी ऑडियंस कि वो कैसा परसीव करेंगे कंटेंट को, राइट। एंड ऑल्सो तुषार, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है ना, अभी जो हमने एग्जांपल लिया दैट वाज अ चेंज इन टेक स्टैक, बट टाइप अलग अलग हो सकता है। लेट्स से अगर किसी यूट्यूब चैनल पर हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन वो नेटवर्किंग या फिर ऐसे कुछ पढ़ाने लग जाए, जो कि उनका लाइक मेन एम नहीं था चैनल का, तो जो भी उनका बायो होता है या फिर डिस्क्रिप्शन होता है चैनल का, जो भी मतलब जब जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे उन्होंने मार्केटिंग करी अपने चैनल की, उससे ऑल ऑफ अ सडन वो डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएट करने लग जाए, देन देयर इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो फिर A/B टेस्टिंग काइंड ऑफ वर्क करता है कि हाँ देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा, चल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं चले तो फिर लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। Okay, like this actually takes me to this thing that चलने की हमने बात की, तो सौम्या जी को भी चल के जाना पड़ेगा इस स्ट्रीम से, बिकॉज उनका एक दूसरा कमिटमेंट है। सो सौम्या जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी ज़िंदगी 40 मिनट निकाल के हमें दिए, बातें की, कहानियाँ सुनाई, तो बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट सौम्या जी। थैंक यू सो मच तुषार एंड ऋषिका, काफ़ी मज़ा आया तुम दोनों से बातें करके। आई होप ऑडियंस को थोड़ा बहुत कुछ अच्छी चीज़ें जानकारी मिली हमारी इस लाइफ से, एंड यस, सी यू ऑल वेरी सून। या